and I cannot wait more for others. So let's start with whoever has joined. So today our poet is T.S. Eliot, and we are going to learn the poem The Vast Land. T.S. T.S. Eliot was born in the year 1888 at St. Louis, America, and he died in the year 1965 on January 4 in UK, London. He was born on 26 September. He was influenced by Ezra Pound, William Shakespeare, Walt Whitman, and many other writers. Ezra Pound, I'll mention it here. William Shakespeare. इलियट के जो राइटिंग्स थे, जो भी पोएट्री वगैरह ये लिखते थे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बहुत ही डिफिकल्ट रहती थी समझने के लिए. इट वाज नॉट इजीली, मतलब पढ़ते कि समझ में आना बहुत मुश्किल होता था. बिकॉज इलियट का एक अपना खुद का वे था. इन्हों क्या करते थे अपने राइटिंग्स में, ऑलरेडी जो प्रीवियस राइटर्स थे या फिर इनके जो फ्रेंड्स राइटर्स थे, इनके साथ के जो राइटर्स थे, उन लोग के राइटिंग्स, उन लोग के प्रोवर्ब्स अपने राइटिंग्स में इंक्लूड करते थे और मेंशन कर देते थे कि दिस वाज टेकन फ्रॉम दैट बुक और फ्रॉम दैट पर्सन. मतलब लिखने के साथ साथ ही वाज अ वेरी गुड रीडर. तो याद रखकर उसको अपने राइटिंग्स में यूज करते थे. Eliot got his education in Europe. He did a lot of hard work for his survival. So, अमेरिका में बॉर्न होने के बावजूद टीएस इलियट केम टू इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और वहीं पर रहे थे और वहीं के नेशनल सिटीजन बन गए थे इन द ईयर 1927. इन द ईयर 1927 ही बिकेम अ ब्रिटिश नेशनल. और अमेरिका को ये कंप्लीटली बाई फॉरगॉट कर चुके थे, भूल गए थे. So he got his education in Europe and did a lot of hard work. एक बहुत ही ज्यादा फेमस पब्लिशिंग हाउस है फेबर एंड फेबर. यहाँ के डायरेक्टर थे टीएस इलियट इन द सेम ईयर 1927. Also, T.S. Eliot has the knowledge of 5 languages: Latin, Greek, French, German, and English. 5 languages आते थे इलियट को. That is Latin, Greek, French, German, and English. Beside a poet, he was also a critic. Let me mention it here. He was a good critic, poet, dramatist, a publisher, essayist, and a playwright. I hope you can see it. So, he was also awarded the Nobel Prize for Literature. He got a Nobel Prize for Literature.
In 1922, the Westland won international reputation. 1922 में ये जो वेस्टलैंड हमारी आज की पोएम है, इट गॉट इंटरनेशनल रेपुटेशन. इंटरनेशनली ये बहुत ही फेमस हो चुकी थी पोएम. He says it ये पोएम में he says London is a unreal city. और ये पोएम में he completely used London as a city. पूरा पोएम लंदन सिटी पे ही बेस्ड है. पॉजिटिव साइड्स हो, नेगेटिव साइड्स हो, जो भी हो, he utilized London city as base of the poem. Okay. And other thing is it is very difficult type of poetry because of his way of writing, and he dealt with harsh complex reality. उस टाइम की जो रियलिटी थी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो सिनेरियो था, that was all explained in his poem. He also got influenced by metaphysical poets. He began to write when he was only 14 years old. He completed his graduation in the year 1906 at Harvard University. 1906 graduation at Harvard, and he completed his master's after that in the same university. He was interested in poetry, philosophy, literary criticism, and he fell in love with Emily Hale, but he did not marry her. मतलब T.S. Eliot की एक गर्लफ्रेंड थी, whom he did not got the chance to get married. He married someone else. तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी टीएस इलियट के बहुत सारे वर्क्स हैं. बाद में इनकी शादी हुई तो इनके वाइफ के ऊपर भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं. फर्स्ट पोएम ऑफ टीएस इलियट वाज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफॉक. Let me write it here. And next poem is Georgian, which was written in 1919. And in 1922, he wrote Wasteland, which was a post-war illusion. So it shows कि post war के बाद कैसे कैसे scenes थे. और 20th century के he was known as the most influential poet of the 20th century. Ash Wednesday and Four Quarters are his two famous works. And ये जो Four Quarters work है उसको T.S. Eliot said के it is one of his finest works, and he wrote this in the year 1943, and Nobel Prize भी इनको इसी के लिए मिला था. Okay, let's move on to our poem. First, we'll see the introduction of the poem. This is the most important poem of 20th century and a central work of modernist poetry. This poem was published in the year 1922 in 436 lines. Let me mention it here. Sorry, it's 434. 434 lines, published in the year 1922. This is known as the most important poem of 20th century. वर्ल्ड वॉर वन के बाद का सिनेरियो बताया गया ये पोएम के थ्रू, और इसका बेस जो था वो लंदन सिटी था. 66 पेजेस में ये पोएम प्रिंट की गई. एंड ये पोएम स्टार्टिंग वर्ड्स है पोएम के, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ऑफ ऑल.
I will show you fear in a handful of dust and Sanskrit mantra. टीएस इलियट जब यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में थे तो यहाँ पर इंडियन लिटरेचर से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे एंड ही लर्न संस्कृत ओवर देयर. सो बेसिकली द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. तो ये पोएम जो है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है. द बरियल ऑफ द डेथ, मतलब ये पोएम के अंदर 5 सब पोएम्स है. अ गेम ऑफ चेस, द फार sermon, death by water, and what the thunder said. It's WH80, what the thunder said. So 1, 2, 3 and 4, 5. 4 and 5. तो 5 सब poems है ये poem के अंदर. So I have divided this particular T.S. Eliot's work into 2 classes. Today, as we have learned about T.S. Eliot, and we are going to learn about the burial of the dead and the game of chess. मतलब we have completed 3 parts. We are going to complete 3 parts today. First तो जो है T.S. Eliot की journal information about the writer, then introduction. Then we are going to cover first 2 poems, The Burial of the Dead and The Game of Chess. So it's like we are covering 3 things today. And again, we will be conducting a class tomorrow, जिसमें we are going to cover next 3 topics, the fire sermon, death by water, and what the thunder said. Okay, so टीएस इलियट के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और टीएस इलियट इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. वो थे एजरा पॉन्ड, जो कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख लिए इनका नाम. तो एजरा पॉन्ड जो है टीएस इलियट को सजेस्ट करे कि इनकी जो पोएम है वेस्ट प्लान, इसको थोड़ा सा एडिट करो, थोड़े से एडजस्टमेंट्स करो. तो टीएस इलियट को ये रिकमेंडेशन दिए थे कि कुछ कट कट करो ये पोएम. So it was published in the year 1922 on October in British Journal in London. लंदन में ये पोएम पब्लिश हुई थी अक्टूबर के मंथ में 1922. नेक्स्ट मंथ, इसी के नेक्स्ट मंथ नवंबर में 1922 में ही ये पोएम यूएस में पब्लिश हुई. तो जो मेन थीम है ये पोएम का, दैट इज ब्रोकन एंड लॉस. ब्रोक एंड लॉस के ऊपर है ये पोएम. बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी ही कुछ सीन रहा होगा, ब्रोकन एंड लॉस. दैट्स वाई ये पोएम उसी थीम के ऊपर बेस्ड है. सिंबलिज्म ड्राइव फ्रॉम लीजेंड इम्प्लाइज. ये पोएम में बहुत सारे लीजेंड राइटर्स, बहुत सारे फेमस राइटर्स के कोट्स, वर्ड्स, प्रोवर्ब्स, उन लोग के नॉवेल्स में से कोटेशंस, ये सब चीजें लिए गए हैं. The modern world is similarly barren and empty, and everything has lost in the deeper spiritual meaning. मेन इसका कंक्लूजन ये पोएम का ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है बैरन, मतलब व्हाट वी कैन से, एक ऐसी लैंड जहां पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, वो खराब हो गई. वैसे ही कुछ मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है. एंड इट्स सो एम्प्टी. एवरीथिंग हैज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग. अगर हम हर चीज को गौर करें तो स्पिरिचुअली कुछ डीपर मीनिंग है, ऐसा टीएस इलियट इज सेइंग. सो ये जो पोएम है द वेस्ट लैंड, इसका ओरिजिनली टाइटल ये नहीं था. इसका टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस. ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये इसका ओरिजिनल टाइटल था. बट जो एजरा पाउंड टीएस इलियट को सजेशन दिए थे कि कट्स करो, कुछ एडजस्टमेंट्स करो, कुछ अपने पोएम में एडिटिंग करो. तो उसके बाद, एडिटिंग के बाद, ये पोएम का नाम हो गया द वेस्ट प्लान. एंड इसके आगे हमारे पास 5 सब पार्ट्स. अब इस सब पार्ट्स में भी जो है एक
simple poem nahi hai. Subparts is also divided into other categories. We'll see it. So let's move on to the poem. Burial of the Dead. आज के जो हमारे जो दो टॉपिक्स है, burial of the death and the game of chess, ये दो पोएम्स भी मैं आप लोग को भेज देती हूँ ग्रुप में आफ्टर इफ्तार, या फिर whenever you feel you have some time for yourself, ये पोएम्स पढ़ लो आप लोग प्लीज. ऑल्सो आज ऑलमोस्ट सभी की क्लास मिस हुई. डू लिसन टू इट whenever you get time. सी रमजान का टाइम है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू कंडक्ट क्लास वाइल फास्टिंग. आई अंडरस्टैंड आप लोग के भी शेड्यूल्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब somebody is saying कि you are not free in the night, फिर फजर में भी you are not agree to take up class. So I felt कि ये टाइम अच्छा है. आई नो थोड़े हाउसवाइफ से दे आर फ्री होल डे, लेकिन थोड़े वर्किंग वुमेन्स भी है हमारे पास, उनके लिए थोड़ा सा मैं ये टाइम कंसिडर करके स्टार्ट ली. तो इंशाल्लाह देखो, एक दूसरे का साथ इम्पोर्टेंट है. आप लोग को एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम आ जाता आप लोग को. तो सबका थोड़ा बहुत सोचना इज इम्पोर्टेंट, राइट. तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप लोग जोहर के बाद थोड़ा सा इबादत भी करना चाह रहे तो 3:30 तक यू विल बी फ्री, एंड असर के टाइम से पहले हमारी क्लास खत्म हो जाती. तो आई डोंट नो आज कोई भी क्यों ज्वाइन नहीं करे. देखेंगे एक बार इस पर फिर बात कर कर हम. मैं पर्सनली आई विल मेक calls to all of you today. So the burial of the dead. So in this poem, the death happened to the spirit. इंसान की नॉट फिजिकल डेथ लेकिन स्पिरिचुअली डेथ ऑफ अ पर्सन. तो यहाँ पर मॉडर्न मैन जो है उसकी स्पिरिचुअली सॉरी उसकी स्पिरिट की डेथ हो गई, ऐसा द राइटर इज सेइंग हियर. So the poem is starting from the word कि April is the coolest month of all. First line of the poem is an unknown speaker claims that April is the cruelest month, even though we might usually think of spring as a time of love. So अप्रैल को यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं, बहुत ही क्रूअल मंथ है बोलकर बता रहे. इवन तो अप्रैल जो है एक अच्छा मंथ है, यहाँ पर स्प्रिंग का सीजन शुरू होता, इट इज अ टाइम ऑफ लव. लेकिन राइटर के सेंस में क्रूअल इसीलिए है बिकॉज इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर अलोन, देन जब फ्लावर्स ब्लूम हो रहे, इफ यू आर सीइंग द फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड पीपल किसिंग, you might feel depressed, you might feel um, sad because you are alone. Also you might get memories and desires. जब आप अकेले हैं तो आपको किसी की शायद याद आ सकती है, या फिर कुछ अपने डिजायर्स इमर्ज हो सकते हैं आपके दिल में. इसीलिए राइटर इज फीलिंग दैट अप्रैल इज द cruelest month of all. Then he is talking about the chores in the wasteland. What kind of trees and fruits grow out of barren and death wasteland? So the poet is questioning कि एक बंजर जमीन से कौन से टाइप ऑफ फ्रूट्स ग्रो हो सकते, and he is only giving the answer के the answer is in a negative. आंसर नेगेटिव है, कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता. Man can find only broken images. इंसान को सिर्फ ब्रोकन इमेजेस मिल सकते. देयर इज नो शेल्टर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन अंडर द शेड ऑफ डेड ट्रीज. सो ही सेइंग कि जब ट्रीज की डेथ हो गई तो इंसान को कहीं भी शेल्टर नहीं मिल सकता, और क्रिकेट से कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता इंसान का. जब
पानी की आवाज, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स या फिर रेन ड्रॉप्स ह्यूमन को कुछ भी होप नहीं दे सकते। बहुत ही सैड वे में पोएट ये सब बता रहे हैं। द ओनली रेफ्यूजी रेड रॉक। रेड रॉक जो है क्रिश्चियंस का एक फेथ है। जीसस को के पास एक रेड रॉक रहता है, ऐसा लोग बिलीव करते हैं, जो ह्यूमंस की सेफ्टी करता। तो ही इज सेइंग कि ओनली रेड रॉक इज द शेल्टर। दुनिया में कोई भी एक सहारा नहीं है, सिर्फ रेड रॉक जो है जीसस के पास ही अपना शेल्टर है बोलकर टीएस इलियट बता रहे हैं यहाँ पे। The shadow of faith is immortal and much different from the shadow of man. ह्यूमन जो है मोर्टल है, मरने वाला है एक दिन, और उसकी शैडो, उसका सपोर्ट हमको कुछ भी नहीं कर सकता। उसका सपोर्ट इज नथिंग फॉर अस। जो फेथ हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए, हमारा गॉड गॉड के साथ फेथ स्ट्रांग रहना चाहिए, एंड गॉड विल हेल्प अस। Man is haunted by the fear of death and the anger of the God. So he is also saying कि इंसान जो है इंसान के पास बहुत ज्यादा फियर है। दो चीजों का फियर है इंसान के पास। फर्स्ट इज द फियर ऑफ गॉड एंड द सेकेंड इज द फियर ऑफ डेथ। गॉड हमको पनिश करते, इस चीज का हमको डर है। दूसरा, हम एक दिन वी आर मोर्टल, हम मरने वाले हैं, उस चीज का हमको डर है। Essentially, man is handful of dirt who is the fear of death. So he's saying कि इंसान वैसे तो कुछ है ही नहीं, एक पीस ऑफ डस्ट है जो कि अर्थ में चले जाने वाला है। नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट 2 episodes of guilty love. अभी we'll see कि what is guilty love. This is the passage from Wagner's opera. एक राइटर है, उनकी राइटिंग से ये पैसेज लिया गया है। ये पैसेज का नाम है 2 episodes of guilty love. Okay, it's not O, it's 2. So this title, Wagner's opera entitled by यहाँ पर दो लोग हैं, ट्रिस्टन एंड आइसोलेट। इनकी बात हो रही है। This is a story of a guilty love. The wind blows fresh to the homeland. My Irish girl, where are you? Lingering. ये एक सॉन्ग है जो सेलर, you know who is a sailor? A person who sails ship. Maybe he is in navy, maybe he is a sailor of a private कंपनी। तो यहाँ पर सेलर जो है अपनी इरिश गर्ल है, सेलर की गर्ल है, उसके लिए सेलर इज सिंगिंग दैट कि बहुत ही फ्रेश उसको विंड आ रही फ्रॉम हिज होमलैंड, जहाँ पर उसकी गर्ल है वहां से उसको सेलिंग पे है ये सेलर, एंड ही सिंगिंग अबाउट हिज गर्ल। सेलिंग पे वहां पर उनको उसकी गर्ल की याद आ रही, सो ही सेइंग के एक फ्रेश विंड की तरह उसको फीलिंग आ रही। The second story of guilty love is that of the Hainach girl and her lover. The girl says to her lover, "You gave me flowers." ये भी एक सेलर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। टीएस इलियट यहाँ पर सेलर्स को इसीलिए लिए बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो काफी सारे सेलर्स की भी डेथ हुई थी, एंड टीएस इलियट उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये हुआ कि द सेलर गेव अ बंच ऑफ फ्लावर्स। दैट फ्लावर इज द सिंबल ऑफ लव। और ये सेलर फ्लावर गर्ल को जो दिए थे, तो सारे लोग वो गर्ल के हाथ में फ्लावर देख लिए थे, और फ्लावर का नाम है हाइसिंथ। तो वो गर्ल को सारे लोग हाइसिंथ गर्ल नाम से पुकारना शुरू कर दिए, एंड वो गर्ल को पर्टिकुलरली वो सेलर, दे आर नॉट मैरिड येट, लेकिन वो लोग मे बी दे आर इन रिलेशनशिप एट दैट टाइम, मे बी दे वर एंगेज्ड। सो राइटर जो है टीएस इलियट यहाँ पर पेन बताना चाह रहे हैं वो गर्ल का,
as she's waiting for her lover. So the girl is saying, I could not speak up and was in shock when people called me. And I stood very much silent. जब लोग में से आप अपने सेलर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं खामोश रह जाती हूँ, ऐसे दैट गर्ल इज सेइंग. या आई स्टूड लुकिंग कोर ऑफ माई लाइफ विद साइलेंट. तो ये गर्ल अपनी फीलिंग बता रहे हैं, उन्हें बोल रहे कि अपने लाइफ के बारे में एकदम खामोशी से शॉकिंगली वो गर्ल सोचना शुरू कर दिया. मेंशन ये जो लास्ट लाइन में मेंशन करी थी, खामोशी से गर्ल, आई कुड नॉट स्पीक अप एंड वॉज शॉक एंड साइलेंट. ये लाइन्स जो है स्टैंजा में वैगर्स ओपेरा जो अभी मेंशन करे थे हम, ये भी लाइन सेम वहीं से लिए गए हैं. इट मीन्स एम्प्टीनेस जो गर्ल को फील हो रही उसके मैन के बगैर, दैट ही इज मेंशनिंग. दिस इज द रिप्लाई ऑफ द वॉचमैन फ्रॉम हुम द लवर इंक्वायर्स. सो अब वो गर्ल क्या कर रही, वहां पर एक वॉचमैन है एट द सी, उससे इंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया अबाउट हर लवर के कहाँ पर है, शिप कहाँ पर है, कोई आइडिया है क्या कौन सी सी में अब शिप है जो उसके बिलव्ड को वापस ले आ सकता. अगेन जो वॉचमैन है ही गिव द रिप्लाई इन नेगेटिव. अभी शायद वो सेलर की डेथ हो गई, मे बी इन द सी समवेयर, एंड वो गर्ल इंतजार में ही है. तो कंटिन्यूइंग, ये स्टोरी यहीं पे एंड हो गई. वो गर्ल, इट वाज नॉट कंक्लूडेड के वो पर्सन वापस आया, लेकिन आंसर जो था वॉचमैन का वो एक नेगेटिव वे में था. अ मॉडर्न फॉर्च्यून टेलर. या इट वाज एन इनकम्प्लीट स्टोरी. इनकम्प्लीट क्या, जब ऑलरेडी ही गिव अ हिंट के नेगेटिव आंसर है, मे बी द पर्सन हैव डाइड इन द वर्ल्ड वार. सो नेक्स्ट इज अ मॉडर्न फॉर्च्यून टेलर. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैडम सोसोट्रिस. एक सोसोट्रिस लेडी है. ये स्टोरी इनके बारे में है. शी इज अ वेरी फेमस फॉर्च्यून टेलर. यू नो व्हाट इज फॉर्च्यून टेलर, जो फ्यूचर बोलते थ्रू द कार्ड्स. सो शी हरसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड कोल्ड. तो एक फॉर्च्यून टेलर जो है, इसको बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, एंड शी इज कंसिडर एज द वाइसेस्ट वुमेन इन यूरोप. ये जो है एक वाइस वुमेन कंसिडर की जाती यूरोप में, बिकॉज इन सारे लोगों का फॉर्च्यून बोलते, एक पैक ऑफ कार्ड है इनके पास. वो कार्ड्स के थ्रू, वो कार्ड्स इन्हों बोलते कि आप चूज करो, आप उसमें से जो भी कार्ड निकाले वो कार्ड देख के शी यूज टू से योर फ्यूचर. सो टीएस इलियट यहाँ पर अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कंसिडर करके बोल रहे हैं कि वो फॉर्च्यून टेलर जो है, एक छोटे बच्चे का फॉर्च्यून देखे, वो बच्चे के मम्मा का फॉर्च्यून देखे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का फॉर्च्यून देखे, ऐसे ही सारे लोगों का फॉर्च्यून वो लेडी देखते. वो लेडी के पास एक इतनी सारी क्राउड रहता लोगों का, मतलब फॉर्च्यून देखने के लिए लोग इतने ज्यादा डेस्परेट है, लोगों को सबको चाहिए कि वो लोग अपना फ्यूचर क्या है मालूम करना चाह रहे हैं. शी हैज कार्ड्स फॉर ऑल, और वो लेडी के पास सबके लिए कार्ड्स है. तो टीएस इलियट उससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो लेडी से, बट देर इज एनी कार्ड फॉर द हैंग्ड मैन. तो यहाँ पर हैंग्ड मैन जो टीएस इलियट बोल रहे हैं, हैंग्ड मैन, ही इज अगेन टॉकिंग अबाउट द क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो क्रिस्ट के लिए क्या कोई कार्ड है तुम्हारे पास, ऐसा इलियट वो लेडी से क्वेश्चन कर रहे हैं. हियर इज अनदर कार्ड फॉर दोज हु शुड बी केयरफुल बाय डेथ बाय ड्रोनिंग. और टीएस इलियट बोल रहे कि वो लेडी के पास ऐसे कार्ड्स है, तुम जिससे वो लेडी बोल रही कि तुम लोग पानी से दूर रहो, शायद तुम लोग ड्रोन हो सकते, डूब के तुम लोग की डेथ हो सकती, ऐसा वो लेडी लोगों को बता रहे. और लोग भी वहां पर एक ऐसा क्राउड में जमा हो गए सर्कल में, और वो लेडी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. तो टीएस इलियट इज सेइंग थैंक यू टू द लेडी. वो लेडी को थैंक यू बोल रहे और बोल रहे कि इफ यू मीट माई फ्रेंड टेल हर आई प्रिपेयर्ड हर हॉरोस्कोप. अगर तुम लोग में से कोई, ही इज रेफरिंग टू द ऑडियंस,
जो टीएस इलियट की ये पोएम पढ़ रहे हैं उनको रिफर करके इलियट बोल रहे कि अगर तुम लोग कोई वो लेडी से मिले तो मेरा थैंक यू बोलो और वो लेडी को बोलो कि मैं वो लेडी का हॉरोस्कोप, मैं वो लेडी का फ्यूचर बता रहा हूँ, वो लेडी का फ्यूचर मेरे हाथ में है। मैं वो लेडी को मैं वो लेडी के पास अगर पहुंचा तो मैं वो लेडी का पुलिस कंप्लेन करवा दूंगा और वो पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा बोलकर टीएस इलियट बोल रहा है। बिकॉज दैट लेडी, द कंक्लूजन ऑफ इट इज nobody can say your future और दिस ऑल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा इलियट बता रहे हैं। एंड इलियट इज सेइंग के दैट इज एन इलीगल बिजनेस एंड दैट लेडी इज अफ्रेड ऑफ पुलिस। तो अगर वो कोई राइट काम कर रही थी तो शी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पुलिस, लेकिन दैट लेडी नोज, that she is on the wrong path and she cannot control her own cold, then how can she help others? So the next is Unreal City, London. This is the last stanza of the poem. No, not this. We have one more stanza. So Unreal City, London. ये 60 to 68 लाइन है. Under the blanket of a brown fog on a winter morning. ये लाइंस कुछ यहाँ से शुरू हो रहे हैं. Under the blanket of a fog. Of a brown fog. अंधेरे में जहां पर बर्फ गिर रही वहां से ये सीलिट स्टार्ट कर रहे हैं. ये एक विंटर मॉर्निंग है और क्राउड ऑफ पीपल आर पासिंग थ्रू ओवर द लंदन ब्रिज. लंदन ब्रिज के ऊपर से कुछ लोग पास हो रहे हैं. दे आर गोइंग टू अ चर्च. आई कैन नॉट काउंट द पीपल बिकॉज देयर वर सो मेनी. इलियट इज सेइंग कि उन लोगों को काउंट नहीं कर सक रहे बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं और इन सबकी स्पिरिचुअली डेथ हो गई. लोग एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ अपना 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 सेल्फ 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 सोच रहे हैं. यहाँ पर इलियट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का सिनेरियो बताना चाह रहे थे कि लोगों को एक दूसरे में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था. हर कोई, एवरीवन यूज्ड टू थिंक अबाउट देमसेल्फ. कुछ चाहिए लोग को तो खुद के लिए ऐसा सोचना शुरू कर दिए थे. लोगों की मेंटालिटी जो थी, दूसरों के लिए जो हेल्पिंग नेचर था, वो सब खत्म हो गया था. इंसानियत खत्म हो गई थी. इसी वजह से इलियट बोल रहे कि स्पिरिट, उन लोग की जो रूह है, उन लोग की जो आत्मा है, उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा बता रहे हैं. So they walked down Doncaster, went to church. उन लोग एक दूसरे से भी कोई बात नहीं कर रहे रास्ते में. सबके आईज नीचे है रोड की तरफ एंड दे आर गोइंग टू द चर्च. तो ऐसे प्रे कर भी कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसा इलियट इज सेइंग. Coming to the last stanza of this poem, The Burial of the Death, part 1 में है अपन. डोंट थिंक के पूरा पोएम टीएस इलियट का खत्म हो रहा, जस्ट द पार्ट एंड का लास्ट स्टैंजा है. Stenson, the representative of the Westland. So ये पैरा की जो सबलाइन है वो है, Tiresias, a protagonist and the mouthpiece of T.S. Eliot, appeared the stage and addressed his friend Stenson. टीएस इलियट के फ्रेंड है स्टेंसन, जिसको एड्रेस किया गया ये पोएम में. एंड यहाँ पर दिस वाज शोन दैट the Stenson who is walking in London street, in the street I saw a antiquate of mine. So Stenson जो है स्ट्रीट से जा रहे थे, so T.S. Eliot saw him and he stopped him and call him to talk. So Stenson जा रहे थे रोड से, T.S. Eliot देखे उनको, he stopped him and start talking to him. He is asking him कि you were with me in the ship of Miley. माइली एक शिप है जिसमें टीएस इलियट थे एंड इनके साथ ये स्टेंसन भी थे. तो टीएस इलियट अब स्टेंसन से क्वेश्चन कर रहे कि तुम वही है ना जो मेरे साथ शिप में थे, मेरे फ्रेंड. अगेन इलियट ही क्वेश्चन कर रहे स्टेंसन से, व्हाट हैपेंड टू दैट कॉर्स व्हिच यू हैव प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. जो तुम सीड्स बो कर रहे थे अपने गार्डन में लास्ट ईयर, उन लोग का क्या हुआ.
हैज इट बिगन टू स्प्राउट? उन लोग मतलब उन लोग की जड़ें स्प्राउट होना शुरू हो गई। विल इट ब्लूम दिस ईयर? अभी क्या उसमें फ्लावर्स आते ये साल? इट्स बेड आर बिलाइट इट्स ग्रोथ? अच्छे से ग्रोथ हो रही है उन लोग की। ये जो है स्पिरिचुअल रीबर्थ के बारे में यहाँ पर इनडायरेक्टली टीएस इलियट बात कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रीज के बारे में नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल बर्थ के बारे में, इंसानियत को वापस लाने के बारे में बात हो रही, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है बात। और टीएस इलियट बोल रहे, ओ कीप द डॉग अवे, ही इज अ ह्यूमन फ्रेंड। अब डॉग को क्या करो, अपना जो गार्डनिंग सेक्शन है उससे दूर रखो, बिकॉज डॉग ह्यूमन फ्रेंड तो है, लेकिन अर्थ को वापस ही से डिग कर देता, जिससे तुम्हारे सीड्स ग्रो नहीं होते, तुम्हारे प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। तो ये जो लाइन है डॉग वाली, दिस इज अ कोटेशन, ये एक पोएम है बाउडिलारिस की, जिससे एक कोटेशन लिया गया है। दिस इज एल, यू हाइप्रोकेट रीडर माय फेलो मैन माय ब्रदर। यहाँ पर टीएस इलियट जो है, यू हाइप्रोकेट रीडर माय फेलो मैन माय ब्रदर, ये नो इनकी ऑडियंस को, इनके रीडर्स को रिफर करते हुए बोल रहे, दिस वार्निंग गिवन टू स्टेप्सन इज एप्लीकेबल टू ऑल मैन। ये जो वार्निंग स्टेप्सन को दी गई, ये सारे इंसानों के लिए एप्लीकेबल है, सारे लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड में हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। देयर इज नो चांस फॉर स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड रीजनरेशन इन द वेस्टलैंड। मतलब लंदन सिटी, ये वेस्टलैंड इज द लंदन सिटी, ऐसे समझ लो। लंदन सिटी को ही रिफर कर कर टीएस इलियट अपनी ये सारी पोएम लिखे। तो उन्होंने बोल रहे कि स्पिरिचुअली इतनी डेथ हो गई। यहाँ पर भी इनका फ्रेंड का जो आंसर था, दैट इज इन नेगेटिव, मतलब उनके पास ट्रीज ग्रो नहीं हुए, जो सीड्स उन्होंने सो करे थे वहां से ट्रीज ग्रो नहीं हुए। सो टीएस इलियट इज सेइंग के अभी जब एक बार स्पिरिट की डेथ हो गई तो वहां पर चांस ही नहीं है कि रीबर्थ होना। तो कोशिश करो कि तुम लोग अपने आप को बचा लो, कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में इंटरफियर ही होने नहीं दो जो आपकी स्पिरिट की डेथ कर देते और आपको, आपकी ग्रोथ होने के लिए आपकी हेल्प नहीं करते। सी इट हैपेंस, थोड़े लोग हमारे भी लाइफ में रहते जो हमारे फ्रेंड ही रहते, लेकिन दे यूज टू डिग आवर ग्रेव फॉर अस, हमारे पीछे हमारी कोई हेल्प नहीं करते। सामने तो दे यूज टू बी आवर फ्रेंड, लेकिन अपने पीछे दे यूज टू डिग अ ग्रेव फॉर अस। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर रखो, ऐसे टीएस इलियट लोगों को सजेशन देना चाह रहे थे। So this is the last part of our part 1, the burial of the death. Coming to the next poem, that is a game of chess. So first let's have a look at the introduction of a game of chess. यहाँ पर दो स्टोरीज रहेंगे गेम ऑफ चेस में, अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड के रिलेशनशिप्स कैसे रहते उस चीज के टॉपिक के ऊपर। A game of chess is the analysis chiefly about two very different women. ये एनालिसिस है, दो डिफरेंट वुमेन्स की लाइफ ली गई एंड उनके ऊपर एनालिसिस किया गया टीएस इलियट के थ्रू। मॉडर्न वुमेन कैसे रहते मॉडर्न वर्ल्ड में, एंड देयर अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप्स विद मेन, और उन लोग के रिलेशनशिप्स उन लोग के मेंस के साथ कैसे अनफुलफिलिंग है, कंप्लीट नहीं है। दे आर बोथ ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ रिपीटेशन, उन लोग एक ऐसे साइकिल में ट्रैप है जहां से उन लोग का स्केप ही कुछ नहीं है। द ओनली स्केप इज डेथ, उन लोग का स्केप सिर्फ ये है कि उन लोग की डेथ हो जाना, अदर कोई रीजन नहीं, मतलब कोई और चांस ही नहीं है कि उन लोग की सिचुएशन से बच सकना। एंड दैट सीम्स अनथिंकेबल। यहाँ पर दो वुमेन्स है, फर्स्ट तो क्लेयोपेट्रा, जो फर्स्ट वुमेन जिसकी बात होने वाली है अभी। नेक्स्ट इज ओप्लिया, सेकेंड वुमेन। बोथ वुमेन टुक देयर लाइव्स, इन दोनों अपनी लाइफ्स ले लिए, मे बी ये दो वुमेन सुसाइड कर लिए, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड। सो बेसिकली दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू मैरिड वुमेन, उन दोनों के क्लासेस अलग है। दो मैरिड वुमेन के, एक है लोअर क्लास की एंड एक है अपर क्लास की, दो वुमेन्स के बारे में बात की गई, उन लोग की लाइफ किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है।
सो द स्टोरी वन हैज बिगन। स्टोरी वन में दो सीन्स है। तो द स्टोरी स्टार्ट्स, ये पोएम के लाइंस जो है, द चेयर शी सैट इज इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, अ लॉर्ड ऑन द मार्बल विद द ग्लास हेल्ड अप द स्टैंडर्ड्स। द चेयर से ये पोएम के लाइन स्टार्ट है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक वुमेन है जो चेयर पे बैठी हुई है, एंड ऐसा लग रहा है कि उसके सर पे ताज है। वैसे तो ताज है नहीं, लेकिन उसके सर पे एक ताज लग रहा। और मार्बल जो है, जब वो वुमेन चेयर से नीचे देख रही तो मार्बल इतना क्लियर है कि वो वुमेन का फेस वो मार्बल पे दिखाई दे रहा, उतना शाइनी वो मार्बल है। ऑल्सो उसके रूम से इतने अच्छे सेंट्स की स्मेल आ रही, इतना अच्छा कलेक्शन ऑफ आर्ट है जहां पर वो बैठी हुई है वो वुमेन वहां पर। सो लेट्स सी कि सीन वन में क्या हो रहा। तो द फर्स्ट सीन इज लेड इन द ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम में है ये फर्स्ट सीन जो है, ऑफ अ फैशनेबल लेडी कॉल्ड द लेडी ऑफ सिचुएशन, हु इज एन एक्सपर्ट इन सेक्स इंटीग्रेट। तो ये लेडी जो है, शी इज वेरी मच फैशनेबल, बहुत ही फैशनेबल क्लोथ्स पहनी हुई है, बहुत ही रॉयल टाइप ऑफ ज्वेलरी शी इज वियरिंग। एंड उनके पास उनके रूम में जो है काफी सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स रखे हुए हैं। एंड द वुमेन इज एक्सपर्ट ऑफ सेक्स इंटीग्रिटी। वो वुमेन को सेक्स लाइफ के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। शी इज वेरी गुड इन दैट, ऐसा टीएस इलियट बता रहे हैं। हर ड्राइंग रूम इज सो गॉर्जियस एंड स्मेल्स सो वॉलंटियस। The paintings and the works of art refers to the stories of ancient love and rape. So जो वो वुमेन का ड्राइंग रूम है, that drawing room is covered with the very luxurious paintings. वो रूम में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स आर्ट्स है, और वो सारे पेंटिंग्स रिफर्स टू द लव, एशियंट लव के बारे में वो पेंटिंग्स है। ऑल्सो वो वुमेन का अपीयरेंस बताया जा रहा कि किस तरीके से उनका अपीयरेंस है, उन किस तरीके से रॉयल ड्रेसिंग में है, और किस तरीके से रॉयल ज्वेलरी शी इज वियरिंग। और उनके ड्राइंग रूम में काफी सारे परफ्यूम्स की स्मेल आ रही, विच आर वेरी प्राइसी, बहुत कॉस्टली है वो परफ्यूम्स। जो पेंटिंग्स है उसमें एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत ही फेनोमिनल है, द स्टोरी ऑफ फिलोमेल। फिलोमेल वाज अ गर्ल एंड शी गॉट रेप्ड बाय सम पीपल, और बाद में वो गर्ल जो है शी टर्न इनटू अ नाइटिंगेल बर्ड। तो वो भी एक आर्ट पीस रखा हुआ है, ऐसा टीएस इलियट ये चीज मेंशन कर रहे हैं। वो आर्ट पीस जो है, दैट इज द पीस ऑफ प्यूरिफिकेशन। वो पीस प्यूरिफिकेशन था मॉडर्न टाइम का, बहुत ही फेमस आर्ट पीस था, इसीलिए उसको इस तरीके से मेंशन किया गया पोएम में। लव हैज degenerated into lust and no hope to recover। यहाँ पर टीएस इलियट बोल रहे कि देर इज नो चांस फॉर लव, लव के लिए कुछ चांस ही नहीं है। यहाँ पर कुछ एक दूसरे पे ट्रस्ट करे जैसा नहीं है। ओनली फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन हार्टली कनेक्शंस मिसिंग है, ऐसा टीएस इलियट अपने ये वाला पर्टिकुलर पार्ट अ गेम ऑफ चेस में बताना चाह रहा है। गेम ऑफ चेस ये इसका नाम इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर दो साइड्स ऑफ द स्टोरी है। फर्स्ट तो ये वुमेन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी और एक वुमेन की। मतलब लाइफ इज नॉट बैलेंस्ड, लाइफ एक गेम ऑफ चेस से बताना चाह रहे टीएस इलियट, जहां पर एंड में वी हैव टू, वी आर नॉट गोइंग टू विन, यहाँ पर हम लूज हो जा, वी आर गोइंग टू लूज द गेम। सो नेक्स्ट सीन है अभी इसके बाद। फर्स्ट सीन में तो वी हैव सीन के उसका ड्राइंग रूम कैसा है, पेंटिंग्स आर्ट पीसेस क्या है। अभी नेक्स्ट सीन में शी वॉज वेटिंग फॉर हर लवर हु अराइव्स आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर वो गर्ल जो है, जो लेडी है, जो रॉयल लेडी दिख रहे हैं, शी इज वेटिंग फॉर हर लवर, वो अपने लवर के लिए वेट कर रहे हैं। और थोड़ी देर से क्या हुआ, उनके लवर ही केम। तो आप एज सुन एज हर लवर केम, वो गर्ल जो है, वो लेडी जो है, शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग। अपने हस्बैंड है, एक्चुअली वो लवर उसके हस्बैंड है, उसके हस्बैंड को जो है कंप्लेन करना शुरू कर दी वो लेडी।
शी कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, हेडेक का कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर हेडेक जो है नर्वस ब्रेकडाउन वुमेन का एट दैट टाइम, मॉडर्न वुमेन को किस तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा वो चीज बताया जा रहा। सो वो वुमन जो है ऐसा हेडेक का कंप्लेन कर रहे हैं। आफ्टर सम प्रिटी कन्वर्सेशन, अब थोड़ी सी बातचीत हुई वो हस्बैंड वाइफ में, तो वाइफ हेडेक का कंप्लेन करे तो हस्बैंड इज नॉट सेइंग कि ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे, कुछ आंसर ही नहीं दे रहे। तो वाइफ क्वेश्चन कर रहे कि व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। तो हस्बैंड इज सेइंग कि मैं क्या बोलूं तुम्हारा। तो वाइफ अगेन क्वेश्चन कर रही कि क्या यू डोंट फील एनीथिंग फॉर मी, यू डोंट लव मी नाउ, ऐसा वाइफ क्वेश्चन कर रहे उनके हस्बैंड से। तो हस्बैंड इज अगेन रिप्लाइंग मी कि दो पर्ल्स इन योर आईज, तुम्हारे आईज कितने शाइनी दिख रहे हैं, ऐसा हस्बैंड रिप्लाई दे रहे। तो ये जो लाइन है दो पर्ल इन योर आईज, ये शेक्सपियर की पोएम द टेम्पेस्ट से लिया गया है। लेट मी मेंशन इट हियर। ओके, सो वो हस्बैंड जो है अपने वाइफ का केयर नहीं कर रहे, मतलब ही इज नॉट केयरिंग फॉर हर। और जब उन्हें क्वेश्चन कर रहे कि कुछ तो बोलो, तो उनके आइस के बारे में बोल रहे तुम्हारे आइस कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वाइफ बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एंड द लेडी सेइंग कि ठीक है जाने दो, मेरा हेडेक है तो जाने दो, हेडेक रहने दो, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे हेडेक से। मैं क्या करती हूँ, अब द लेडी विशेस टू रन आउट इनटू द स्ट्रीट, मैं बाहर जाती हूँ, स्ट्रीट स्ट्रीट पे घूमना फिरना शुरू कर देती हूँ। और मेरे ओपन हेयर्स, ये लेडी का ओपन हेयर्स से कहते हैं। एंड शी सेइंग कि मैं ऐसी जो डेली मेरा रूटीन है, एमलेस रूटीन है मेरा, मेरा कोई मोटिव नहीं है लाइफ में, और मैं ऐसी एमलेस रूटीन जैसा मैं रोज फॉलो करती हूँ वो अभी फॉलो करती हूँ। द लेडी रिप्रेजेंट्स अ बैरन लाइफ ऑफ मॉडर्न वुमेन। ये जो एम्प्टीनेस वो लेडी को फील हो रहा, दिस इज बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ एम नहीं है, कुछ काम नहीं है वो लेडी को। इवन तो वो लेडी के पास सारे लग्जरियस थिंग्स है, एंड बट स्टिल शी इज फीलिंग एम्प्टी बिकॉज उनके पास कुछ मोटिव नहीं है, कुछ काम नहीं है। और ऑल्सो टीएस इलियट ये पोएम में ये डेली का वो लेडी का एक डे रूटीन बताए विच शी इज फॉलोइंग डेली। क्या होता है, सेम रेगुलर रूटीन फॉलो करने से यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, लाइफ बोरिंग फील होना शुरू हो जाती है। सो यू नीड टू डू सम वर्क, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये लेडी की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। तो लेडी का रूटीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ मॉर्निंग शावर, मॉर्निंग में दैट लेडी इज टेकिंग अ शावर, बहुत ही डल रूटीन है वो लेडी का। मॉर्निंग में शी इज टेकिंग अ हॉट बाथ, आफ्टर दैट शी इज गोइंग टू प्ले अ गेम ऑफ चेस इन द क्लब इन द आफ्टरनून एंड देन रेस्ट। डज यू सी एनीथिंग? सो कब तक ये लोग चेस खेल रहे, तब तक उन लोग के डोर पे कोई नॉक नहीं करे, तब तक ये लोग चेस खेल रहे। तो प्ले चेस प्रेसिंग वन आइड एंड वेटिंग फॉर नॉक, चेस खेलते हुए एक आई प्रेस कर रहे हैं और वेटिंग फॉर नॉक। ये लाइन जो है मिडिल्टन्स प्ले इंटाइटल्ड वुमेन बिवेयर वुमेन से ली गई है। लेट मी मेंशन इट हियर। मिडिल्टन्स का एक प्ले था, इसका टाइटल था वुमेन बिवेयर वुमेन। यहाँ से ये लाइन ली गई है। सो वो वुमेन का यही रूटीन है कि डेली शी यूज्ड टू टेक शावर, देन शी यूज्ड टू गो टू प्ले चेस, देन शी यूज्ड टू कम बैक एंड टेक रेस्ट। तो ये रूटीन से दैट वुमेन गॉट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, वेरी मच बोर्ड। ऐसे लग्जरियस लाइफ जीते जीते वो लड़की को, वुमेन को, वो लेडी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो गई, एंड शी डज नॉट वांट टू लीव एनी मोर बिकॉज उसके हस्बैंड उसको, यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताया गया कि हिज हस्बैंड इज प्रोवाइडिंग हर मेनी थिंग्स, मतलब एक लग्जरियस लाइफ तो दे रहे बट ही इज नॉट केयरिंग फॉर हर। तो इसीलिए वो वुमेन इज वेरी मच सैड। ये फर्स्ट फेज था। नेक्स्ट फेज जो है इट टॉक्स अबाउट अनदर वुमेन, इसका टाइटल है सेक्स इन रियल लाइफ। So this story is about Lil
एंड एल्बर्ट, इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है यहाँ पर। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड सीन। यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट हो रहा जा रहा दो लेडीज के ऊपर। दो लेडीज जो है बैठे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स मैटर्स। सो लिल के यहाँ पर जो फर्स्ट गर्ल है, लिल जो है अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में बैठी हुई है, एक छोटा मोटा सा क्लब है। वहां पर बैठ के शी इज टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ। या लिल इज अ लेडी एंड एल्बर्ट इज अ मैन। तो लिल की फ्रेंड का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर ऑन अ क्लब, जो छोटा सा क्लब है, अपने फ्रेंड के साथ बैठकर शी इज टॉकिंग। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि लिल जो है, लिल के हस्बैंड हैज कम फ्रॉम द आर्मी आफ्टर 4 years and he want an active sex life, but the lady of the rock's advice, the lady of the rock जो है लिल की फ्रेंड है, इसका नाम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उसका लिल का जो हस्बैंड है, ही केम आफ्टर 4 years आर्मी से एंड ही वांट टू लिव हैप्पीली, ही वांट टू स्पेंड टाइम विथ हिज वाइफ। लेकिन द सिचुएशन हियर इज लिल जो है उसको बहुत ही सैड फील हो रहा, उसको ये फील हो रहा, शी गॉट मैरिड बट she she does not want to have babies because उसकी वजह से लिल ऐसा फील कर रही है कि बेबीज की वजह से बहुत ज्यादा वर्क हो जाता लाइफ में और she does not want to have babies। तो for that she is taking some contraceptive pills so that उसको बेबीज नहीं होना, उसके लिए लिल क्या करे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से लिल को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही और लिल कुछ भी काम में कंसंट्रेट नहीं करना चाह रही और उन्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई अपनी लाइफ से। एंड द सिचुएशन हियर इज द लेडी ऑफ रॉक एडवाइजेस लिल टू लुक यंग। यहाँ पर क्या हो रहा, लिल की जो फ्रेंड है उन्होंने लिल को एडवाइस दे रही कि यू शुड लुक यंग एंड प्रिटी टू रिट्रेन द लव ऑफ हर हस्बैंड, अदरवाइज देर आर मेनी अदर गर्ल्स हु विल गिव कंपनी टू हर हस्बैंड। तुम अपने हस्बैंड के लिए ऐसा वीक क्यों फील कर रहे, थोड़ा सा अच्छा फील करो, गो ड्रेसअप अच्छे से रहो, बिकॉज देर आर अदर गर्ल्स जिससे तुम्हारा हस्बैंड फिर अट्रैक्ट हो जाता। ऐसा उसकी फ्रेंड उसको एडवाइस दे रही, हु विल गिव कंपनी टू हर हस्बैंड। बाहर दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी दे सकते हैं। सो लिल इज गेटिंग ओल्ड एंड शी कैनॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड। वो पिल्स इतना ज्यादा लिल को वीक कर दे रहे कि उन्हें ओल्ड हो जा रही। मोर ओवर हर लास्ट अबॉर्शन हैज ruined her health। सो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि लिल को इतना ज्यादा मतलब शी डजंट वांट टू हैव बेबी, जिसकी वजह से शी गॉट अबॉर्टेड अ बेबी इन पास्ट। उसकी वजह से भी लिल को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ रिपीटेड मदरहुड। अब लिल को डर हो रहा कि मे बी शी कैन कंसीव फिर से, और शी डजंट वांट टू एक्सेप्ट मदरहुड, उसको मदरहुड एक्सेप्ट नहीं करना है। शी इज कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो लिल बहुत ज्यादा कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड है और यहाँ पर अपने फ्रेंड से लिल बात करने आई। और यहाँ पर सीन ये है कि वो क्लब का टाइम खत्म हो गया और वो क्लब की एक लेडी है, मे बी शी इज द वेट्रेस देयर। उन्होंने लिल और उसकी फ्रेंड जो रॉक ऑफ द लेडी बताया गया जिसका नाम, उन दोनों को बोल रही जाओ जल्दी से, अभी टाइम खत्म हो गया। तो वी बेड गुड बाय टू ईच अदर। ये लास्ट लाइन है ये पोएम की। सो इट्स टेकन फ्रॉम, ये वाली जो लाइन है ये ओपिलिया, सॉरी लेट मी मेंशन इट हियर, ओपिलिया फेयरवेल से लिया गया है जो कि हैमलेट में है। ओके, सो द सीन एंड्स हियर।
ये दो पार्ट्स थे द वेस्टलैंड के। फर्स्ट वन वाज द बरियल ऑफ द डेथ एंड द सेकंड वाज द गेम ऑफ चेस। अभी और 3 पार्ट्स है जो कि हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। ओके, आज हम द बरियल ऑफ द डेथ एंड द गेम ऑफ चेस कवर करें। कल ये 3 4 5 जो है इंशाल्लाह इफ पॉसिबल कल, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो हम ये कवर करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट्स है तो डू आस्क मी, विल क्लियर इट आउट। इसमें क्वेश्चंस थे